Hello everyone, my name is Ramasri Rai and welcome at MKC. So my dear students, in my first lecture, I taught you so many things. यदि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो please watch it, right? So in my first lecture guys, I explained you about importance of grammar. What is the importance of grammar? And I also explained about that what is the importance of parts of speech, and again I explained about the importance of tenses. And next guys, I explained what is the importance of pronunciation and how you will improve your pronunciation. And after that I explained how you will pronounce certain words. So guys, I also told in my first lecture how to pronounce certain words in the way, right? Next, so guys, in my today's lecture, I'll be discussing you about word power. What is the importance of word and how you will use the words effectively in your communication. Today, I will also tell you that how to use and utilize simple and easy words in your spoken in your English language. And I will also tell you today guys that how you will learn, how you will use difficult words, right? In that I will tell you that how to learn words with the help of images, examples and practice. So guys, keep on watching all the entire lectures from the starting till the end. I'll be also telling you today that for good communication, important thing is that fluency is very important. If you want to be a fluent speaker, keep on watching this video. I will also tell you today guys how expression is important for English language. What you should do for your better expression. And in today's lecture, I'll be also tell you that how body language is important for your good communication skill. I will also explain some important tips of energy level. If you want to speak good English, how you will maintain your energy level. And guys, the best and the biggest thing in my today's lecture is that I'll be telling you important words. So guys, keep on watching this video. I will discuss you guys about the words, importance of word power. तो कई बार बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की गाइस, आप बताओ इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वर्ड पावर की समस्या है? आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी वर्ड पावर की प्रॉब्लम्स होती है. और कमाल की बात है, जो आज के एग्जाम्स पैरामीटर हो गया है वो बेस्ड ऑन धीरे धीरे वर्ड पावर पे हो गया है. अगर आप एनडीए की बात करो तो एनडीए में भी क्या है, 10 आपका सिनोनिम्स हो जा रहा है, 10 आपका इडियम्स हो जा रहा है, 10 आपका एंटोनिम्स हो जा रहा है. तो देख लीजिए, तो 30 जो क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड पावर पे ही बेस्ड हैं, राइट? तो कुल मिला के वर्ड पावर पे आप काम कैसे करेंगे, हाउ यू विल वर्क विद वर्ड्स. तो फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर द बेस्ट कम्युनिकेशन, आप सबसे पहले बेटा आप यू इंप्रूव योर बेसिक वर्ड्स. पहले तो आपके जो बेसिक वर्ड हैं वो अच्छे होना चाहिए. जो बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके बेसिक वर्ड्स हैं पहले आप इस पर काम करिए. तो बेसिक वर्ड्स को कैसे इंप्रूव करेंगे? जो कुछ भी आप अपने आसपास में देखते हैं और सारे वर्ड को आप लिख लीजिए और सारे वर्ड के सेंटेंसेस बना दीजिए. जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे सर दिस इज द मार्कर, राइट? सर वेयर आर यू? सर आई एम इन द स्टूडियो. मैं एक स्टूडियो में हूं. स्टूडियो में क्या है? देयर इज अ कैमरा, ठीक है, और फिर देयर इज अ लैपटॉप, गेटिंग, फिर देयर इज अ डिजिटल बोर्ड. जो कुछ भी आपके आसपास में दिखता है, अगर आप कमरे में हैं तो देयर इज अ फैन, वहां एक फैन है. फिर उसके बाद अगर कमरा है तो देयर इज अ बेडशीट है. फिर अगर कमरा है तो देयर आर सो मेनी बुक्स है. तो उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है कि दिस इज माय बुक, वेयर इज माय बुक, राइट? और प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, ऑलराइट? तो इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में बोल के प्रैक्टिस करेंगे. आई बिलीव गाइज, इसको आप करके देखो, ऑटोमेटिकली योर वर्ड पावर विल बी इंप्रूव्ड. तो सबसे पहले जितने बेसिक वर्ड्स आप जानते हैं, इन बेसिक वर्ड्स को आप बोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कई बार. फिर अब बेसिक वर्ड के बाद आई विल टेल यू वन बाय वन. फर्स्ट आई एम शोइंग यू बेसिक वर्ड्स बेटा. फर्स्ट आई एम शोइंग यू दिस बेसिक वर्ड्स.
तो नाउ दीज आर द बेसिक वर्ड्स, एकदम बेसिक वर्ड्स हैं जो मैं आपको अभी समझा रहा था। तो दीज आर बेसिक वर्ड। डेफिनेटली ये लार्ज है, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, अब आप 2 से 3 सेंटेंसेस बेसिक वर्ड्स के रोज बनाइए। आपको क्या करना है बच्चों, आपको जीरो टू हीरो बनना है। आपको जीरो से लर्न करना है और हीरो बनना है। अब उसके लिए क्या करना है, तो डेफिनेटली ये क्या लिखा हुआ है, लार्ज, और ये लिखा हुआ है बिग, ये सिनोनिम्स है। जैसे किसी ने पूछा सर योर स्टूडियो इज बिग, तो मैंने कहा यस माय स्टूडियो इज बिग। डेफिनेटली माय क्लासरूम इज वेरी बिग। योर क्लासरूम, नो सर माय क्लासरूम इज नॉट वेरी बिग, माय क्लासरूम इज स्मॉल। राइट, तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। स्मॉल, राइट, का हम सेकेंड मीनिंग जानते हैं, टिनी होता है। तो स्मॉल, इट इज अ स्मॉल क्लासरूम। राइट, इट इज अ स्मॉल मार्कर, इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्कर, ये बहुत बड़ा मार्कर नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल मार्कर। जो भी बेटा छोटे छोटे, लीव देखो कितना प्यारा वर्ड है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं। तो लीव का क्या मतलब होता है, छोड़ना होता है। क्या होता है, लीव का मतलब होता है छोड़ना। राइट, अब जैसे कहते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं यार छोड़ो हटाओ उसे, लीव इट, है ना। आई एम गोइंग टू लीव माई क्लास, मैं अपनी क्लास को लीव करने जा रहा हूं। ठीक है, और कई बार कहते हैं लीव हिम, उसे छोड़ दो यार, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो लीव हिम, लीव हर, यार छोड़ो हटाओ उसे। लीव देम, अरे उन्हें हटाओ। लीव ऑल, सबको छोड़ दो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्लियर, तो लीव वर्ड है। तो जितने स्टूडेंट, स्पीक, अब स्पीक वर्ड आ गया, इसको कई बार बोलिए, स्पीक फास्ट, स्पीक स्लोली, हे डोंट स्पीक फास्ट, है ना। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यस सर वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हाँ सर हम अंग्रेजी बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो ट्राई टू स्पीक। इसी तरह से आप बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए एंड टॉक टू योर सेल्फ। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं किससे इंग्लिश में बात करूं, कोई नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करिए। राइट, अपने से जितना ज्यादा बात करेंगे ना, उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना फास्ट सीखेंगे, उतना बेहतर सीखेंगे। ठीक है, आपसे बेहतर आपका कोई फ्रेंड ही नहीं हो सकता है। सो टॉक टू योर सेल्फ, खुद से इंग्लिश में बात करिए, यू विल रियली लर्न। ओके, सो ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाट। अब देखिए सारे सेम छोटे छोटे वर्ड्स हैं, नियर वर्ड है, इस पे कोई सेंटेंस बना लीजिए। कम एंड सिट नियर मी, आओ और मेरे पास बैठो। राइट, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिए आप। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स कि आप इन सारे वर्ड्स, ऐसे ही जितने भी बेसिक वर्ड्स हैं, उन सारे बेसिक वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाने कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्ट वर्ड्स भी सीख जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर द थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड की तरफ बात हम लोग कर लेते हैं। वेट, बेसिक वर्ड बच्चे सीखने के बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि केवल बेसिक वर्ड ही कम्युनिकेशन में थोड़ी इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो इससे पहले मैंने आपको वर्ड डिस्कस किया था, अब ये वर्ड्स थोड़े से क्या हैं, डिफिकल्ट हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको भी जानना बेहद जरूरी है। राइट, अब देखिए क्या है, एब्सेंस। एब्सेंस का हिंदी क्या होगा, अनुपस्थिति। ओ आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बेयर योर एब्सेंस, मुझे आपकी अनुपस्थिति है ना बर्दाश्त ही नहीं होती है ना। ऑलराइट, तो इसी तरह जितने में से, अब देखिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्लीश वर्ड है, मैं इसको समझाता हूं। इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। देखिए एक जो वर्ड है ACCOMPLISH, ये बेटा एकम्प्लिश होता है। अगर SH लास्ट में आता है तो इसको हम लोग मानते हैं FINISH। अगर लास्ट में आता है तो एकम्प्लिश फिनिश, एकम्प्लिश फिनिश मतलब पूरा करना। राइट, जैसे आई एकम्प्लिश्ड माई मिशन, मेरे साथ सारे बच्चे बोलो, जो वट एवर आई एम स्पीकिंग रिपीट आफ्टर मी, तो आप खुद इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। आई एकम्प्लिश्ड माई मिशन, she accomplished her mission, they accomplished their mission, right? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर accomplish जो एक वर्ड है वहां पे है, मैं उसको बताता हूं। ठीक है, एक और वर्ड होता है ACCOMPLICE। तो accomplish जो होता है, ये होता है सह अपराधी होता है, सह अपराधी होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे पार्टनर इन क्राइम होता है। तो एकम्प्लिस अगर कोई है तो पुलिस उसके पीछे आती है,
तो आसानी से याद हो गया। तो अकम्प्लिश वर्ड बहुत प्यारा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो बेटे जो टफ वर्ड हैं उनके भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है। बिगिनिंग है, बिलीव है, कितना प्यारा वर्ड है, गाइस बिलीव मी आई विल मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर। विश्वास करिए हम आप एक बहुत अच्छा स्पीकर बनाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को आप बोल बोल के डेफिनेटली है, कितना प्यारा वर्ड है। इसी तरह से बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हैं जो कि आपको लर्न करना है। हालांकि हम आपको वर्ड पावर पर भी बहुत अच्छे से आपको लेक्चर्स देंगे एंड यू विल एंजॉय द लेक्चर्स, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। चलिए अब बात करता हूं मैं कि अगर हम वर्ड पावर की बेटे बात करें तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड जो है एक तरह से क्या है बेटा, आपका बुलेट्स है। क्या है? वर्ड जो है वो आपके बुलेट हैं। अब आप बताओ प्यारे बच्चों कि गन बहुत अच्छी हो, गन बहुत पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड गन हो और बुलेट कम हो, तो क्या आप लड़ पाएंगे? नहीं। यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू कैन स्पीक वेल, बट यू डोंट हैव मच वर्ड्स। लेकिन आपके पास वर्ड कम है, तो क्या आप किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब गन तो बहुत अच्छी है और बुलेट बहुत कम है, नहीं लड़ पाएंगे बहुत देर तक। तो होना क्या चाहिए भाई कि आपके पास अगर गन हो तो इतनी बुलेट्स हो, इतनी बुलेट्स हो कि आप काफी देर तक किसी से क्या कर सकें? युद्ध कर सकें। भाई ज्यादातर बच्चे हमारे क्या है, डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो कमाल की बात है कि यू हैव अ गन, right at the same time you have lots of bullets, so you can fight with your enemy for a long time। ठीक उसी तरह बच्चे कम्युनिकेशन में है कि if you have more words then you can speak, you can communicate with anyone without any problem for a long time। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। alright, so guys let's go for the next। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी सी चीजें हैं। अभी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा इमेज है, सोल्जर्स हैं, राइट। तो सोल्जर्स कैन नॉट फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ दे हैव नॉट मोर बुलेट्स। गन तो है बट बुलेट नहीं है, तो दे कैन नॉट फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिमिलरली एक स्पीकर के लिए इफ यू वांट टू स्पीक फॉर अ लॉन्ग टाइम देन डेफिनेटली यू नीड मोर वर्ड्स। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं जितना ज्यादा वर्ड होंगे, जितने इफेक्टिव वर्ड्स होंगे, उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी बच्चों, ठीक। अब लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट। अब बेटा क्या है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो गई, दैट्स गुड। अब उसके बाद आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो गई, दैट्स गुड। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपकी वर्ड पावर अच्छी हो गई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अब इन तीनों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चे, वो आती है आपकी फ्लुएंसी, राइट। अब द क्वेश्चन इज दिस कि बच्चे पूछते हैं कि सर हाउ कैन आई इंप्रूव माय फ्लुएंसी। मैं सर अपनी फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करूं? तो फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव, अगर मुझसे कोई बच्चा कहे कि सर मैं दौड़ना चाहता हूं खूब जम अच्छे से, मैं क्या करूं? तो कोई भी व्यक्ति कहेगा अरे यार ज्यादा से ज्यादा रन करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रनिंग अच्छी हो जाएगी। तो सिमिलरली गाइस, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, इफ यू वांट टू स्पीक अ गुड स्पीकर, यू प्रैक्टिस मोर, राइट। कोई मिले ना मिले कोई, तो टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बच्चे इंग्लिश में बात करो, हे व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश। Where are you going? I'm going to this school. Why are you going? I'm going to learn spoken English. Who is teaching? Rai sir is teaching, right? What are you learning? And I'm learning many things. यार talk to yourself, right? Cycling करते रहो, talk to yourself. Coming on foot, talk to yourself. You are inside the room, talk to yourself. देखो अंग्रेजी आती कि नहीं आती है? In first attempt, you will start learning, guys. Okay, so now fluency कैसे आएगी? Try to speak as much as you can with others and to yourself. अपने से भी बात करिए, पूरी जिंदगी भर अपने से ही बात नहीं करना है, नहीं तो अगला वाला सोचेगा अरे लगता है इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, आउट ऑफ नेटवर्क है, आउट ऑफ सर्वर है। अपने से ही हमेशा नहीं बात करना है। प्रैक्टिस के लिए अपने से टॉक टू योरसेल्फ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस विथ अदर्स, राइट। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अरे हम बहुत कोशिश करते हैं, हाँ सर अंग्रेजी नहीं निकलती है, सर हम बहुत कोशिश करते हैं, सर अंग्रेजी बाहर नहीं निकलती है। अरे यार कैसी बात करते हो, हमने अंग्रेजों को
मार मार के निकाल दिया बाहर देश से, तो अंग्रेजी कैसे नहीं निकलेगी भाई? आराम से निकल जाएगी। मेक एन एफर्ट, ट्राई टू स्पीक, ट्राई ट्राई ट्राई, ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल कम आउट। अपने आप सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, आपके बाहर आ जाएंगी। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। सो गाइस, फॉर द फ्लुएंसी आई एम सेइंग प्लीज speak as much as you can, right? And talk with your friends, talk with your teachers in English. Automatically your English will be quite good, guys. Let's go for the next. Okay, wait a minute. All right, now there are 7 reasons है ना, you are not fluent in English. 7 क्या, बहुत सारे कारण है why you are not fluent speaker, why your English is not improved, why you are not speaking English well. कई बार तो बच्चे संकोच बहुत करते हैं। Hesitation is your biggest enemy. संकोच जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। Kill that enemy. उस दुश्मन को मार डालो, और वरना वो जिंदगी भर तुम्हें मारती रहेगी। Never think कि अगर मैं बोलूं तो कहीं गलत ना बोल जाऊं। If I speak, I'll speak wrong. Never think like that. Whenever you try, then you try to speak. अगर आप सोचेंगे, कई बार बच्चे सोचते कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। कई बच्चे क्लास में आते हैं तो कहते हैं कि सर पहले मैं ग्रामर खूब पढ़ लूं और फिर तब अंग्रेजी बोलना सीखूं। तो मैंने पूछा कि हाउ डिड यू लर्न हिंदी? बच्चे आप बताओ बेटा, आपने हिंदी कैसे सीखा? यू लर्न हिंदी, फर्स्ट यू लर्न ग्रामर एंड देन यू स्टार्टेड लर्निंग हिंदी? नो, फॉर हिंदी यू गॉट एटमॉस्फेयर ऑफ हिंदी स्पीकिंग, and similarly you need English speaking atmosphere. So अगर आपको अंग्रेजी बोलने का माहौल मिलेगा तो you will speak English, अगर आपको हिंदी बोलने का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो you will speak हिंदी, अगर आपको उर्दू बोलने का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो you will speak उर्दू। Is it clear guys? So इसलिए don't hesitate, try to speak with your friends, with your relatives, with your teachers, with everyone, right? Okay, so go for the next. Let's go for the next. Okay. Now, अब the question is that expression, right? Expression is very important. Expression matters a lot. आप देख सकते हैं, कहते हैं कि 85% जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से पता चलता है, right? If your English is good and your expression is not good, your language will be considered dead. Your language will be considered monotonous. आपकी जो लैंग्वेज है वो monotonous मान ली जाएगी, वो निरस मान ली जाएगी, and nobody will like to listen you. कोई भी आपको सुनना नहीं चाहेगा। क्लियर? तो आपको एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना होगा। आप याद रखिएगा कि आपके चेहरे, कई बार क्या होता है कि वर्ड्स के साथ अगर आपके एक्सप्रेशन नहीं है, अगर वर्ड आपका एक है SAD, सैड, आपने कहा सैड और वर्ड है हैप्पी। क्लियर गाइस? वर्ड सैड और हैप्पी, अगर आप किसी से ऐसे कहेंगे हेलो एवरीवन आई एम सैड, वो कहेगा लगता है मैड है, सैड नहीं है ये। तो भैया सैड के साथ आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए, हेलो एवरीवन आई लॉस्ट माय बाइसिकल एंड आई एम वेरी सैड। सैड कहो तो सैड का भाव आना चाहिए, हैप्पी कहो तो हैप्पी का भाव आना चाहिए। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी बच्ची का एक्सप्रेशन देखेंगे तो लगता है कि समथिंग हैपेंड रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है। ओह माय गॉड, हाउ इट हैपेंड, ऐसे कैसे हो गया? नाउ सी द लेडी, शी इज नॉट हैप्पी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा कहते नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं सही है, तो शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, किसी चीज से नाखुश हैं। आप देख सकते हैं हियर इज द लेडी, नाउ शी इज वीपिंग। तो गाइस आई एम टेलिंग यू कि लैंग्वेज के साथ आपका एक्सप्रेशन सुपर्ब होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। जितना बेहतर एक्सप्रेशन होता है उतनी बेहतर आपकी लैंग्वेज बच्चे मानी जाती है। सो वर्क फॉर योर, है ना? नाउ आई विल शो यू सो मेनी इमेजेस। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं और अकॉर्डिंग टू आपके फेस ही लोग जज करते हैं कि आप किसी भी इमेज को आप देख लो, इमेज से ये पता चल जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कैसे इंसान है। आप देख के बता सकते हैं कि हु इज द सिंपल वन, हु इज द स्मार्टेस्ट वन। जैसे आप लोग बहुत सारे जो फोटोज ऐसे खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं,
बिलीव मी गाइज, ये फोटोज जो होते हैं ये आपके कैरेक्टर के क्या होते हैं, साइन होते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपके फोटोग्राफ्स भी बताते हैं, राइट। तो गाइज जो आपका एक्सप्रेशन होता है, जो आपके चेहरे का भाव होता है, यह भी आपके पर्सनालिटी के बारे में और आपके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देता है गाइज। तो इसलिए कभी भी हम जब इस तरह के इमेजेस लेते हैं तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम कहीं पोस्ट करते हैं, ठीक। चलिए लेट्स कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें देयर आर 4 इमेजेस गाइज, इसमें 4 इमेजेस हैं और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि आप इंटरव्यू में 85% इंप्रेशन जो पड़ता है आपके बॉडी लैंग्वेज का पड़ता है, राइट। द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यूअर्स रूम, जैसे ही इंटरव्यूअर के रूम में आप एंटर करते हैं गाइज, तैसे ही एट दैट वेरी मोमेंट द इंटरव्यूअर जजेस यू वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और यू विल बी रिजेक्टेड। कई बार तो पहले से ही वो माइंड मेकअप कर लेते हैं, आई थिंक ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। क्योंकि वो क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रही तब तो मान लेते हैं कि आई विल सिलेक्ट, यू विल बी सिलेक्टेड। अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं रही तो मान लेते हैं यू विल बी रिजेक्टेड। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं गाइस, इसमें 3 इमेजेस हैं, आप बताइए प्लीज वोट, इसमें बताइए कि आउट ऑफ 4 which candidate is very serious about interview, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो सीरियस लग रहा है। सो गाइस प्लीज हेल्प मी। शायद बच्चे जरूर बताएंगे कि लास्ट वन, राइट। नाउ शी इज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स हर इंटरव्यू। अगर आप इनको देखिए तो ऐसा लगता है इंटरव्यू देने का कोई इरादा नहीं था, किसी तरह चली आए। इनको आप देख लीजिए, ऐसा लगता है ओह माय गॉड आई एम वेरी श्योर आई विल नॉट बी सिलेक्टेड, हाँ तो कंफर्म है मेरा तो नहीं होना है, राइट। इनको आप देख लीजिए कि हो गया तो भी ठीक और इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी ठीक, मतलब ये सब में ठीक है, हो गया तो भी नहीं हुआ तो भी। तो गाइज अगर आप इनको देखेंगे तो शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, राइट, एंड सी हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी इज सीटेड, राइट, द वे शी स्माइल्स, इट शोज दैट कि शी इज कॉन्फिडेंट दैट शी विल बी सिलेक्टेड। इनको 100% कॉन्फिडेंस है कि इनका सिलेक्शन होना कंफर्म है और तय है। क्लियर गाइस? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नाउ ये भी क्या है, बॉडी लैंग्वेज के कुछ प्रारूप हैं। तो यू कैन सी कोई डिफरेंट वे जो होते हैं, जैसे कि आप कभी ऑफिस में किसी से बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पे गाइस आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे तो इंप्रेशन जो होता है वो आपका बहुत अच्छा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल गाइस, राइट, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दिया। मैंने ये कहा कि भाई ग्रामर भी जरूरी है, फिर मैंने ये कहा कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है, फिर मैंने ये कहा कि आपका वर्ड पावर जरूरी है, अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर मैंने ये कहा कि भाई बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फाइनली अगर कम्युनिकेशन में इफ यू आर कम्युनिकेटिंग, इफ यू आर स्पीकिंग विद एनीवन, यदि आप किसी से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एनर्जी लेवल, राइट। आपके अंदर एनर्जी लेवल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है या हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है और एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी भाषा में बात कर रहा है, अगर एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं है तो आपकी जो भाषा होगी वो मोनोटोनस हो जाएगी, निरस हो जाएगी। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट माई ऑल स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर यू कम्युनिकेट, व्हेनेवर यू स्पीक, you must put out your best self, है ना, that you must maintain your energy level। अगर आप एनर्जी लेवल को मेंटेन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। तो ऑलवेज फील मोर कॉन्फिडेंट विथ एवरी वर्ड। जब भी आप जो भी वर्ड बोले, है ना, प्रॉपर वे से आप उसको एक्सप्रेस करना है, प्रॉपर वे में आपको उसको बोलना है, राइट, और विथ एनर्जी के साथ बोलना है, राइट। सो मेंटेन योर एनर्जी लेवल, आपको अपनी एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करना है, ठीक है। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू कम्युनिकेट विथ एनीवन, यू प्लीज मेंटेन योर एनर्जी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्ड पावर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। वर्ड पावर जो होती है वह स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है, राइट। सो लेट्स कम फॉर द वर्ड। कुछ वर्ड्स को बच्चों में एक्सप्लेन करूंगा
मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड समझ में आ जाए, लेकिन जैसे मैं कहूं बोलने के लिए आप वैसे बोलते भी चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, एक वर्ड है, जब भी कोई वर्ड मैं देखता हूं बच्चे तो मेरे दिमाग में ये आता है कि वो वर्ड एटलीस्ट पहले तो एक वर्ड आए बच्चे के माइंड में आए कि ये भाई ये वर्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्लैश, राइट? अगर आपको आता है तो प्लीज टेल मी, अगर आता है तो बता दीजिए मुझे, ठीक? ऑलराइट, तो ये वर्ड क्या है? क्लैश है। चलिए, लेट्स गो फॉर द वर्ड नेक्स्ट। चलिए, अब ये वर्ड बच्चे क्या है? क्लैश है। तो क्लैश की मीनिंग हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सारे वर्ड्स आपको क्लियर भी रहे, ठीक है? चलिए, लेट्स गो। अब बेटा वर्ड क्या है? क्लैश। वर्ड दिख रहा है अच्छे से? सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, क्योंकि जिस वर्ड को आप कई बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो if you want to speak, if you want to use that words will come out on your tongue. आप जानते हैं everything is in your mind. You have to set everything on your tongue. सब कुछ आपके दिमाग में है। You have to set everything on your tongue. और सेट कैसे होगा? जब कई बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो ये वर्ड का उच्चारण सबसे पहले हम जानेंगे। वर्ड क्या है? क्लैश। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, क्लैश, 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 क्लैश। कम से कम 5 बार बोलो आप, मिनिमम 5 टाइम्स यू हैव टू रिपीट दैट वर्ड, क्लैश, 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 राइट? अब क्लैश की हिंदी क्या होगी बच्चों? क्लैश की हिंदी होगी भिड़ंत या टक्कर। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, क्लैश मींस क्या होगा? भिड़ंत या टक्कर। फिर से बोलिए, क्लैश मींस भिड़ंत या टक्कर। फिर से बोलिए, क्लैश मींस भिड़ंत या टक्कर। कम से कम 2 से 4 बार अगर आपने बोल लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको वर्ड्स बच्चे याद हो गए। आप देख सकते हैं यहां पर एक ट्रक और कार का भिड़ंत हो गया है, ठीक है? तो क्लैश की जो मीनिंग होगी क्या होगी? भिड़ंत या टक्कर होगा, और इसका जो बेटा क्या होगा? सिनोनिम्स होगा, क्या होगा? कोलिजन। तो क्लैश का सिनोनिम्स क्या होगा? कोलिजन। क्लैश का सिनोनिम्स क्या होगा? कोलिजन। क्लैश का सिनोनिम्स क्या होगा? कोलिजन। अब एक सेंटेंस हो जाएगा कि देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार। देखिए, ये ट्रक है और ये कार है। फिर से मेरे साथ सारे बच्चे बोल के प्रैक्टिस, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार। सर, आई सॉ देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार। देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड बाइक। देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड, है ना, बस। ऐसे 2-4 सेंटेंस बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक बेटा? अब द क्लास इज क्लैशिंग। मान लीजिए कि मैंने क्लास बुला लिया, गौरव सर ने भी क्लास बुला लिया, एक ही टाइम में, एक ही क्लास में। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सक्यूज मी सर, मैंने कहा यस सर, द क्लास इज क्लैशिंग। तो मैंने कहा डोंट वरी, द क्लास विल नॉट क्लैश, आई विल मैनेज क्लास इन अदर क्लासरूम, राइट? तो इस तरीके से हमने बोल के प्रैक्टिस कर लिया बच्चे। अब क्लैश ऑफ थॉट्स भी होता है, विचारों का भी भिड़ंत होता है, ठीक है? एंड टू आर्ग्यू एंग्रीली होता है, ठीक है? तो ये हो गया क्लैश। अच्छा, अब इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सारे वर्ड्स को ट्रिक से याद करना संभव नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अरे भैया, कल ऐश करने गए बाइक से ना ऐश करते हैं लोग, कल वो ऐश करने गए बाइक से क्लैश कर गए। कल वो ऐश करने गए क्लैश कर गए। कल वो ऐश करने गए क्लैश कर गए। आई होप बच्चों याद हो गया होगा, ठीक? तो ये बेटा ये कंप्लीट वर्ड है। क्लैश मींस भिड़ंत या टक्कर, और क्लैश का दूसरा मीनिंग क्या होगा? कोलिजन होगा। देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार। कई बार जब बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे वर्ड याद। आई एम वेरी श्योर बच्चों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा और एक बार प्रैक्टिस किया होगा तो सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक? अब देखिए, ये एक इमेज है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सो, द क्लास इज क्लैशिंग, ठीक है? बच्चे क्या हाथ उठाए हुए कह रहे हैं? सर, मैडम, द क्लास इज क्लैशिंग, राइट? इस तरीके से ये इमेज है, क्योंकि इमेज से बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, इसलिए आई डू माई बेस्ट टू गिव देम प्रॉपर इमेज ऑल्सो, राइट? चलिए बच्चे, अगला वर्ड है स्नैच। ये वर्ड आपके सामने आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैच? स्नैच का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। स्नैच का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली देखिए, अब ये आपके सामने आ गया वर्ड। स्नैच का मतलब क्या होता है बच्चों? सारे बच्चे बताओ क्या होगा? एकदम सरल वर्ड है, इसमें भी एकदम कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो स्नैच मीन्स क्या होता है? दैट इज वेरी सिंपल वर्ड। स्नैच मीन्स होता है छीनना। क्या होता है? सारे बच्चे बोलो मेरे साथ बेटे, स्नैच मीन्स छीनना। स्नैच मीन्स छीनना, क्योंकि किसी भी वर्ड की हिंदी जानना बहुत जरूरी है।
हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अंग्रेजी भी क्लियर होता चला जाता है। तो स्नैच मीन्स छीनना, स्नैच मीन्स छीनना, स्नैच मीन्स छीनना, राइट। तो स्नैच का जो डेफिनेशन होगा, सीज क्विकली, सीज भाई कोई किसी से छीनेगा तो क्या करेगा, छीनेगा, सीज करेगा क्विकली और रन अवे कर जाएगा। तो स्नैच मीन्स क्या होता है, छीनना, ठीक है। द थीप स्नैच्ड माई चेन। अब देखिए ये मैडम है यहां पे, ठीक। अब ये देखिए इनका चेन छीन रहा है, तो क्या कहेंगी मैडम जब किसी से, ओ माई गॉड द थीप स्नैच्ड माई चेन, द थीप स्नैच्ड माई चेन, द थीप स्नैच्ड माई चेन, द थीप स्नैच्ड माई मोबाइल, द थीप स्नैच्ड माई पर्स। 2-4 बार बोल लीजिए, देखिए आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा इस स्नैच वर्ड को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए मैडम ने इनको देख लिया और पहचान लिया, तो क्या कहेंगी, सर इसने चैन छीना, सर इसने चैन छीना, सर इसने चैन छीना। वर्ड क्या है, स्नैच। याद हो गया कि नहीं हो गया, इसने चैन छीना, इसने चैन छीना, स्नैच वर्ड याद हो गया, स्नैच। स्नैच मींस क्या होता है, छीनना, स्नैच मींस क्या होता है, छीनना, ठीक बेटा। अब सिनोनिम्स क्या होगा, ग्रैब भी होता है, स्नैच एंड रन। अब आप बताओ कि कोई किसी मोबाइल छीन के क्या रुक जाएगा क्या, स्नैच एंड रन, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल किसी ने छीना तो क्या करेगा, छीनेगा और भाग जाएगा। तो ये होता है स्नैच एंड रन। अब बच्चे स्नैचर क्या होता है, स्नैचर वह व्यक्ति होता है जो किसी का चेन छीनता है। तो वन हु स्नैचेज स्टील्स बाय स्नैचिंग, ठीक है। स्नैचिंग इज गोइंग ऑन, अक्सर कहेंगे, मैडम कहेंगी, सर इन दिस सिटिंग स्नैचिंग इज गोइंग ऑन। ओ माय गॉड द स्नैचिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, स्नैचिंग इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। स्नैचिंग तो पूरी दुनिया में है। क्लियर बच्चों, ऑलराइट, आई होप यू आर एंजॉयिंग, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। चलिए अगले वर्ड की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ये भी बहुत सरल है बच्चे, बहुत टफ वर्ड नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी वर्ड्स दे रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वर्ड्स एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो बच्चे अगला वर्ड क्या है आपका, होमेज। क्या है, होमेज वर्ड आ गया। अब इसकी मीनिंग तो जाने, इसका मतलब क्या होता है भाई। तो होमेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमेज, कौन बताएगा, सारे बच्चे बता लेंगे क्योंकि सामने स्क्रीन पर है, आसान है। तो होमेज का मतलब बच्चे होता है श्रद्धांजलि होता है, ठीक है, श्रद्धांजलि होता है। और इसे हम लोग दूसरी मीनिंग में बेटे कहते हैं ट्रिब्यूट कहते हैं, TRIBUTE, ट्रिब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑनर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल ऑनर। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, स्पेशल ऑनर, राइट। रेवरेंस बाय एक्सटर्नल एक्शन, हम किसी को श्रद्धांजलि तभी देते हैं जब हम अंदर से फील करते हैं कि that person expired, I am going to pay my tribute, I am going to pay my homage to him। ठीक बच्चे, अब देखिए इसमें सेंटेंस भी है, many villagers came here to pay homage to the father of nation महात्मा गांधी। many villagers come here to pay homage to the father of nation महात्मा गांधी। तो आप देख सकते हैं इमेज भी है। अब होमेज वर्ड को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई उसके दादाजी होम पर ही, उसके दादाजी होम पर ही एक एज हो गया था, मर गए थे, तो सब लोग श्रद्धांजलि देने गए थे। आई होप याद हो गया होगा, होम पर ही एक एज हो गया था तो मर गए थे, तो सब लोग श्रद्धांजलि देने गए थे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमेज कहते हैं। होमेज मीन्स क्या होता है, श्रद्धांजलि होता है। होमेज मीन्स क्या होता है, श्रद्धांजलि होता है। बहुत आसान वर्ड्स हैं बच्चे, बहुत आसान है, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड बहुत प्यारा सा है, स्टम्बल। क्वेश्चन है कि भाई वर्ड स्टम्बल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब क्या होता है, स्टम्बल का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बताओ फटाफट। एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है, भाई स्टम्बल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टम्बल। चलिए आपके वर्ड स्क्रीन पे आ गया। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना होता है, ठीक है। ठोकर या ठोकर खाना, चूंकि नाउन भी है और वर्ब भी है, तो आप देख सकते हैं ठोकर या ठोकर खाना होता है। तो देखिए स्टम्बल, जैसे कभी कभी लोग क्रिकेट खेलते समय स्टंप के बल गिर गए, स्टंप के बल गिर गए तो ठोकर खा गए, लुढ़क गए। अच्छा, हम ठोकर खाते कब हैं भाई, जब हम क्या हो जाते हैं, मिसप्लेसिंग ऑफ वंस फुट। हमारा जब पैर, जैसे हम मान लीजिए आराम से चल रहे सीढ़ी से गिर गए, तो हमारा ये पैर क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया। जब मिसप्लेस हुआ तभी तो हम गिरे, राइट। ही स्टम्बल्ड ओवर अ रॉक, वो चट्टान से टकरा के गिर गया, ठीक है। ऑलराइट, अब इसकी जो मीनिंग होगी, ब्लूपर भी होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है।
ब्लंडर भी होता है, याद रखिएगा ग्रामर में ब्लंडर के बाद मिस्टेक का प्रयोग नहीं होता। इट इज अ ब्लंडर, नॉट इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक, इट इज अ ब्लंडर। डिफेक्ट होता है बेटा, एरर तो होता ही है, फॉल्ट होता है, फॉक्स पास होता है, मिस्टेक होता है। बहुत सारे वर्ड मैं आपको दे दिया, लेकिन वर्ड आपको याद करना है स्टम्बल, हिंदी क्या होगा, ठोकर खाना, मिसप्लेसिंग ऑफ वंस फूट होगा, ही स्टम्बल्ड ओवर अ रॉक। ठीक है, आप इस इमेज से भी देख सकते हैं कि ये हो सकता है, कभी कभी क्या होता है एक पैर दूसरे पैर में जब फंस जाता है तो भी आदमी गिर जाता है, और कभी कभी स्टम्बल भी कर जाता है, देखता नहीं है, कहीं छोटी मोटी पिट्स हैं, गड्ढे हैं और पैर पड़ जाता है, इंसान गिर जाता है। क्लियर एकदम? चलिए तो गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। आई एम वेरी श्योर स्टम्बल मींस क्या होता है, ठोकर, है ना, ठोकर खाना, और ब्लूपर होगा, फॉल्ट पास होगा, है ना, ही स्टम्बल्ड ओवर रॉक होगा, बहुत सारे मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कि दैट इज ब्राइब, बड़ा प्यारा वर्ड है, अगर आता है तो बताइए। सबसे पहले इसलिए मैं वर्ड ही दे देता हूं कि इसका मतलब क्या होगा, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइब? आपके स्क्रीन सामने आ गया। ब्राइब का मतलब क्या होता है, यदि कोई बच्चा जानता है तो प्लीज टेल मी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आई विल टेल यू ब्राइब का मतलब क्या होता है। बहुत सरल वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइब? ब्राइब का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सारे बच्चे जानते हैं हमारे, रिश्वत होता है। क्या होता है? रिश्वत होता है। ब्राइब मीन्स क्या होता है? रिश्वत। हम रिश्वत देते क्यों हैं? क्यों देते हैं भाई? हम इसलिए देते हैं कि हमारा कोई काम जो है गलत है और वो हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिश्वत बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मनी ऑफर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्राइबिंग। रिश्वतखोरी के लिए जो पैसा दिया जाता है वही क्या है? ब्राइब है। एल्यूरमेंट का मतलब होता है प्रलोभन, राइट? किसी को लालच देना, लालच देंगे भाई तभी तो काम होगा। अब आप देख सकते हैं ब्राइब, अक्सर देखिए ऑफिस में बोलते हैं बाहर रुकिए, बिना कुछ दिए काम नहीं होगा, बिना खर्च भर के भैया यहाँ ऑफिस में कुछ काम नहीं होता है, तो एल्यूरमेंट ही हो। तो भाई क्लर्क कहेगा 5,000 दे दीजिए, भाई मैं आपका काम करा दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको जमा करना है, किसी अधिकारी को आप 15,000 रुपए दे दीजिए, वो 50,000 का बिल आपको 20,000 में कर देगा, राइट? तो क्या हो गया? गलत काम के लिए उसने पैसे लिए ना। तो अब देखिए एक सेंटेंस है, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि मैक्सिमम ऑफिसर्स टेक ब्राइब, मैक्सिमम ऑफिसर्स टेक ब्राइब, मैक्सिमम ऑफिसर्स टेक ब्राइब, मैक्सिमम ऑफिसर्स टेक ब्राइब। अब ब्राइब इज टेकन बाय एवरीवन, ब्राइब इज टेकन बाय एवरीवन, ब्राइब इज टेकन बाय एवरीवन, या यू कैन से एवरीवन टेक्स ब्राइब। जिनको मौका मिलता है वो ब्राइब ले लेते हैं। ब्राइब इज टेकन बाय एवरीवन या एवरीवन टेक्स ब्राइब। अब ब्राइबर कौन होता है? जो व्यक्ति लेता है, या ब्राइब टेकर भी हम इसे कहते हैं, अ पर्सन हु टेक्स ब्राइब, या ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? रिश्वतखोरी। भैया रिश्वतखोरी कहां नहीं है ना? तो आप कहेंगे सर ब्राइबरी इज एवरीवेयर, है ना? नाउ डेज एवरीवन टेक्स ब्राइब। डू यू टेक ब्राइब? नो सर, आई डोंट टेक ब्राइब, बट इफ आई गेट अ चांस देन आई विल टेक ब्राइब, है ना? लोग कहते हैं रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, रिश्वत लेना नहीं चाहिए, फिर यही नहीं समझ में आता लेता कौन है भाई रिश्वत फिर, है ना? अब यह कहेंगे ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। रिश्वतखोरी क्या हो रही है? दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, अब ब्राइब टेकर का मतलब क्या होता है? ब्राइब टेकर का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स ब्राइब, वह व्यक्ति जो ब्राइब लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ ब्राइब टेकर वाज अरेस्टेड, अ ब्राइब टेकर वाज अरेस्टेड, या हम ये भी कह सकते हैं कि अ ब्राइब टेकर वाज कॉट रेड हैंडेड। एक जो ब्राइब टेकर था वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था, ही वाज कॉट रेड हैंडेड। तो ब्राइब वर्ड भी आई एम वेरी श्योर कि एकदम क्लियर हो गया होगा। ब्राइब वर्ड आप इमेज से भी देख सकते हैं कि दिस जेंटलमैन इज टेकिंग ब्राइब, राइट? तो इसलिए okay guys, so it's all right for today. I'm very sure that you enjoyed. Thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much. क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल से क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं
2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorculsiclasses.com पर। जय हिंद।